सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। Okay, so let's begin the class. We have studied few things in the previous classes. Let's revise a little about 7 fundamentals, and then we will go on talking further. Okay. My first question is, what is a fundamental? Yash. तो 2 minutes ये मेरी बहन का करके तो शुरू। Okay, okay. Ranu ji, what is a fundamental? Sanskar ji, sorry, go ahead. Fundamental thing. Is it the same as essential? Like fundamental? No, essential. No, it's not same as essential. Yeah. Okay. Okay, fine. Let's have it from Swati first, and then I'll ask you. Yes. So fundamental is basically tattva. So as you call, it's the nature of the substance or the characteristics inherited in a substance. Wonderful. Very good. The real nature of a particular substance, you can say, is called as tattva. Very good. Praveen ji, can tattva live without artha or dravya? No. Okay, so hence the tattva we are talking about is not only tattva, it is tattvartha. So we have 7 tattvarthas: Jeev, Ajeev, Asrav, Bandh, Samvar, Nirjara, Moksha, which can also be called as soul, non-soul, influx, bondage, stoppage, shedding, and liberation. So these are basic 7 fundamentals we have talked about yesterday. Okay. Pratik ji, can you tell me what is a soul fundamental? सोल फंडामेंटल मतलब हम जीव है तो मतलब सोल is the only क्या बोलते हैं the one who knows is called Yeah, soul. good, very good. The sentient being or the one who knows is a soul fundamental. Wonderful, thank you. Sanskar ji, what is a non-soul fundamental, and how many substances are considered in it? Who cannot knows, and you cannot sentience, and anantanant non. Okay. Out of 6 dravyas, how many are non-soul fundamentals? 5. Name them, please. Living jeev soul. Okay, fine. Okay. Now I want to ask, Acha Yash, can you tell me those 5 substances which are non-soul fundamentals? आकाश काल पीछे के 2 हो गए, बाकी के 3. पुद्गल, अधर्म, धर्म. Udgal, Dharm, Adharm, Akash, Kal, these are 5 non-soul fundamentals.
Very good. Now let's move forward. Now, if all the six dravyas are considered in these two fundamentals, so commonly speaking, only two fundamentals are there. Now, what about the other five fundamentals? Matlab Asrav, Ban, Samvar, Nirjara, Moksha. What will happen to these five if all the dravyas are considered into this particular fundamental? Clear? So now my question is, now let's move forward. Now the question arises that what happens to these five fundamentals? So let's start talking about that. Okay. So as we can see that five substances comprise the non-fundamental and non-soul fundamental, and one, the soul fundamental, comprises the Jeev Dravya. So hence all of them are considered into only two, soul and non-soul fundamental. So this is quite commonly speaking. बहुत सामान्य सी बात है कि जीव और अजीव में हमने इन्हें अंतर्निहित कर लिया है. अब प्रश्न खड़ा होता है कि बाकी के पांच का क्या होगा? What will happen to the other five? Where will they go? So the answer to that question is, वो पांच इन्हीं दो द्रव्यों की पर्याय हैं. What is पर्याय in English? It is called modifications. So like if I take a sugar cubicle, यदि मैं शक्कर का एक दाना लूं, शक्कर के एक दाने में आपको whiteness भी नजर आएगी, आपको उसमें स्वीट टेस्ट भी समझ में आएगा, उसका क्यूबिकल शेप भी समझ में आएगा. ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो ये सारी चीजें उसकी क्या हैं? तो ये सारी चीजें उसकी अलग अलग पर्याय हैं. दैट मीन्स एक ही द्रव्य की बहुत सारी पर्याय हो सकती हैं. One substance can have lots and lots of modifications. Like you can see, I am right now looking at Yash. I'm also looking at Sanskar. I'm looking at Praveen ji. I'm looking at a lot of things. But then, am I able to look at all of those things in one particular go? एक बार में मैं सबको देख सकता हूं क्या? नहीं देख सकता हूं. तो ये भी ज्ञान गुण की बहुत सारी पर्याय हैं. They are different modifications of one particular Jeev fundamental. Is it clear, everybody? Sanskar ji, anything? Oh, sorry. Fine. So in this way, we understood that Asrav, Ban, Samvar, Nirjara, Moksha are all modifications of soul and non-soul. All these five are the modifications of soul and non-soul. I hope we are quite clear on this. Clear? No problem? I think we are quite clear with this. Yeah. Chaliye. So now we move forward. So Asrav, Ban, Samvar, Nirjara, Moksha are the modifications of Jeev and Ajeev. This is what we have understood so far. Okay. Now let's move forward, and now we are going to talk about how all these five are related to soul and non-soul. Okay. So if I ask you, Yash, are you the son of your mother or are you the son of your father? Just a second, I'll unmute you. Yes. मैं दोनों का ही बच्चा हूँ. Very intelligent, very intelligent. मतलब it's quite normal to understand. अच्छा, रोहिणी जी, जय जिनेंद्र. रोहिणी जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी. हाँ, सुन रही हूँ सर. हाँ, ये पॉइंट आपको समझ में आया
कि जैसे एक बच्चा होता है वो माँ और बाप दोनों का होता है, ऐसे ही एक आश्रव जीव का भी है और पुद्गल का भी है, जीव का भी है और अजीव का भी है, बंध भी जीव का भी है और अजीव का भी है। इस तरीके से ये पांचों के 5 10 हो जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes. Yes. Okay, okay, okay. I think we are Yes, quite sir. coming on the same page. Yes. Okay. जय जनिन मान्या जी, जय जिनेंद्र। हाँ, हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि एक ही चीज दो चीजों की कैसे हो सकती है। जब सोल और नॉन सोल ये दो अलग अलग द्रव्य हैं, या समझ लीजिए ये 6 द्रव्यों में अलग अलग द्रव्य हैं, तो फिर ये दोनों का एक कैसे हो सकता है। तो कोई चीज इन दोनों की कैसे हो सकती है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दैट। Okay. फाइन। सो सपोज इफ आई आस्क यू, सूर्य पहले उगता है या कमल पहले खिलता है? दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। सूर्य जैसे ही उगता है वैसे ही कमल खिल जाता है। कहने का मतलब दो चीजें एक ही समय पर हो सकती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जो चीज हो रही है उसको हम बहुत सारे एंगल से देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ 2 एंगल से देख रहे हैं, एक जीव एंगल और एक अजीव एंगल। यू कैन सी द स्क्रीन दैट आई हैव शेयर्ड टू यू। लाइक एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक इस वाला साइड और एक दूसरे वाला साइड, मतलब एक हेड्स वाला साइड और एक टेल्स वाला साइड। जैसे हेड्स वाला साइड भी कॉइन का उतना ही अपना है जितना कि टेल्स वाला साइड, ऐसे ही आश्रव जीव का भी उतना ही है जितना कि अजीव का। यश समझ आ रहा है? ये क्या बात है। सो इन दिस वे हमें ये बात समझ में आई कि आश्रव का जीव वाला साइड और अजीव वाला साइड दोनों साइड होते हैं। अब यदि ये दोनों साइड होते हैं तो इन दोनों का कुछ नाम भी होगा। सो सेकंड पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पर। द सोल वर्जन ऑफ द मोड्स इज कॉल्ड एज साइकिक, भाव, and the non-soul version of the modes is called as material, द्रव्य। क्लियर? सोल वाला साइड जो होता है उस आश्रव का, उसको हम कहते हैं भाव आश्रव, और मटीरियल वाला साइड जो आश्रव का होता है उसको हम कहते हैं द्रव्य आश्रव। क्लियर? मटीरियल इनफ्लक्स मतलब द्रव्य आश्रव, साइकिक इनफ्लक्स मतलब भाव आश्रव। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब मैं फटाफट आपसे पूछ रहा हूं, आपको फटाफट जवाब देना है। हाँ, प्रतीक जी, सोल वर्जन ऑफ बॉन्डेज उसको क्या कहते हैं? No idea, sir. Sorry. सोल वर्जन ऑफ बॉन्डेज मतलब बंध, उसको क्या कहते हैं? हाँ. शरीर. नहीं, मैं बोलता हूं, जैसे सोल वर्जन ऑफ आश्रव को भाव आश्रव कहते हैं, ऐसे ही सोल वर्जन ऑफ बंध को क्या कहेंगे? द्रव्य. भाव बंध कहेंगे। भाव बंध. ओके, सॉरी. ओके. ऐसे ही हम सब में लगा सकते हैं। तो द सोल वर्जन ऑफ संवर उसको हम क्या कहेंगे? भाव संवर। सोल वर्जन ऑफ निर्जरा उसको हम कहेंगे भाव निर्जरा। सोल वर्जन ऑफ मोक्ष उसको हम क्या कहेंगे? भाव मोक्ष। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ओके, ओके। स्वस्ति जी, इज इट क्लियर? Yes. ओके। सो इन दिस वे वी अंडरस्टूड, जो भी सोल वर्जन होगा उसको हम हिंदी में कहते हैं भाव और इंग्लिश में कहते हैं साइकिक। ठीक है? ये साइकिक वो वाला साइकिक नहीं है, मतलब जिसको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये साइकिक का मतलब होता है भाव, मतलब हमारा अपना। ठीक है? अब जरा दूसरा वर्जन देखते हैं। सो द नॉन सोल वर्जन ऑफ मोड्स इज कॉल्ड एज मटीरियल या द्रव्य। ठीक है?
तो ऐसा ही आपको पांचों पर लगाना पड़ेगा। तो नॉन सोल वर्जन ऑफ आश्रव, इसको क्या कहेंगे? द्रव्य आश्रव। ठीक है। नॉन सोल वर्जन ऑफ बंध, ऑफ बॉन्डेज, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य बंध। ठीक है। सम्यक जी, नॉन सोल वर्जन ऑफ संवर, इसे क्या कहेंगे? बोलिए। द्रव्य संवर। थैंक यू। चलिए, मान्या जी, नॉन सोल वर्जन ऑफ मोक्ष, इसे क्या कहेंगे? द्रव्य मोक्ष। थैंक यू। स्वस्ति जी, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कुणाल जी, नॉन सोल वर्जन ऑफ निर्जरा, इसे क्या कहेंगे? नॉन सोल द्रव्य द्रव्य निर्जरा। वंडरफुल वंडरफुल। यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। एक बार फिर से देखिए, बोल देता हूं। सबसे पहला, जैसे एक बेटा अपने माँ का भी उतना होता है जितना अपने पिता का, ऐसे ही आश्रव उतना ही द्रव्य का, उतना ही जीव का होता है जितना कि अजीव का। ऐसे ही बंध उतना ही जीव का होता है जितना कि अजीव का। ऐसे ही संवर, निर्जरा और मोक्ष पर भी हमें लगाना है। तो सोल वर्जन जो आश्रव का होगा उसे हम भाव आश्रव कहेंगे। जो नॉन सोल वर्जन आश्रव का होगा उसे हम द्रव्य आश्रव कहेंगे। ऐसे ही नॉन सोल वर्जन ऑफ बंध, उसको हम भाव बंध कहेंगे, और नॉन सोल वर्जन ऑफ बंध उसे हम द्रव्य बंध कहेंगे। ऐसा ही आपको बाकी तीनों पर लगाना है। यहां तक हमारी बात पक्की हो गई है। अब प्रश्न खड़ा होता है, आप इतना सारा हमको भेद प्रभेद बढ़ा रहे हो, इतना सब पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि 7 तत्व हम पढ़ क्यों रहे हैं? पता नहीं, मैं या तो मैं पागल हूं या आप लोगों को सब समझ में आ रहा है और मैं जबरदस्ती आपको ये सब बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये तत्व हमने 7 ही क्यों बनाए? 2 तत्व भी बनाए जा सकते थे, जीव अजीव। जबरदस्ती ये 5-7 हमने क्यों बना लिए? अच्छा, 2 छोड़िए, आप यदि कहो कि मोक्ष जाना हमें जरूरी है, क्योंकि मोक्ष के बिना तो जीव संसार में बेचारा भटकता रहेगा, तो मोक्ष जाना जरूरी हुआ, तो भैया 3 तत्व बना लेते, जीव, अजीव और मोक्ष। मोक्ष में भी कर्मों से रहित होगा, इसीलिए नॉन सोल वर्जन हुआ, और मोक्ष अपने पूरे स्वभाव में लीन हो जाएगा, इसलिए उसका सोल वर्जन हुआ। तो मोक्ष ही बहुत था, क्योंकि मोक्ष हमारा हित है, और इसीलिए द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, इस तरीके से हम मोक्ष और जोड़ लेते। तो जीव, अजीव और मोक्ष 3 ही बहुत थे। अब बंदे को क्वेश्चन ये खड़ा हुआ, यदि मोक्ष थे तो क्या मुझे मोक्ष अभी मिल गया है? तो उसने कहा नहीं, मुझे मोक्ष तो अभी मिला नहीं है। तो फिर हमें उस रास्ते की भी तो बात करनी पड़ेगी कि जिससे हमें मोक्ष मिलेगा, तो वो रास्ते को भी उसमें डालना पड़ेगा। अब रास्ता डालना पड़ेगा, तो रास्ता किससे गुजर के जाता है? तो संवर और निर्जरा। ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 बहुत थे। कौन कौन सा? जीव, अजीव, मोक्ष, संवर और निर्जरा, 5 ही बहुत थे। फिर 7 की क्या जरूरत है? देखो फिर से बोलता हूं मैं, जीव अजीव ये 2 ही तत्व बहुत थे। अब जीव को मोक्ष जाना है, इसीलिए हमने मोक्ष तत्व को मान लिया, और मोक्ष का जो मार्ग है, ऐसा हमने संवर निर्जरा को भी मान लिया। ऐसे हमने ये 5 तत्व मान लिए, जीव, अजीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फिर बाकी के 2 तत्वों की जरूरत क्या थी? बाकी के 2 तत्व जबरदस्ती बताए हैं। अक्षय जी थोड़ी मदद करेंगे मेरी? अक्षय दोषी जी। जय जिनेन्द्र संयम जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ हाँ जी। क्योंकि हमें पहले हम जब कैसे जब हम इस अवस्था में होते हैं, जो हमारी ह्यूमन लाइफ की अवस्था में होते हैं, तब इन दोनों को पहले पार करके फिर हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए
राइट, मतलब आपने थोड़ा इस तरफ से लिया है, अपन थोड़ा पीछे से चल रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मोक्ष तत्व की जो हम बात कर रहे थे, जीव और अजीव ये दोनों हमारे प्रिलिमिनरी तत्व हैं। इन दोनों को प्रिलिमिनरीली समझने से, मतलब इन दोनों का पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन पा लेने को मोक्ष कहते हैं। अब ये इसकी जो प्रोसेस होती है उसको संवर निर्जरा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है, इस प्रोसेस में जाएगा कौन और किस स्टेज से वो इस प्रोसेस को प्राप्त करेगा। तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि जीव संसार में बेचारा भटक क्यों रहा है। आपने बता दिया मोक्ष क्या है, आपने मोक्ष का मार्ग बता दिया। अरे लेकिन मोक्ष जाना है, क्या अभी मैं मोक्ष में नहीं हूं? तो इसका जवाब उसको बेचारे को देना पड़ेगा, नहीं भाई, अभी तू संसार मार्ग में है। तो संसार मार्ग के तत्व कौन से हैं? तो आश्रव और बंध ये संसार मार्ग के तत्व हैं। तो इसीलिए आप ये तत्वों को 5 चीजों में भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जीव। संयम जी, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, लाइक इफ पॉसिबल आप वन लाइन में इन सब तत्वों का एक बार, मतलब एक्सेप्ट फॉर जीव एंड अजीव, सबका एक वन लाइनर आप बताओगे क्या क्या होता है? मतलब मैं बस एक्चुअली आई गॉट इट। मुझे एक्चुअली ना ये आगे की स्लाइड में कवर करना था, बट देन माय मिस्टेक, आई शुड हैव पुट दोस स्लाइड्स अर्लियर। फाइन, ओके। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वाला स्लाइड पूरा कर लेते हैं, फिर अपन दोबारा से एक बार उसको देखते हैं। चलिए, तो ये 7 तत्वों को आप 5 में भी समझ सकते हो। जीव, अजीव, मोक्ष, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग। 5 समझ में आया आपको? जीव, अजीव, मोक्ष, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग, 5 हुए ये। जीव, अजीव, मोक्ष, ये तो हमारे 7 नामों में है ही। बाकी जो ये मोक्ष मार्ग है, ये है संवर और निर्जरा। और जो ये संसार मार्ग, सॉरी, जो मोक्ष मार्ग है वो है संवर निर्जरा, और जो बंध मार्ग है या संसार मार्ग है, इसे कहते हैं आश्रव बंध। लेट्स गो टू दो स्लाइड्स जिनकी मैं बात कर रहा था। देखिए, अब हमने ये स्लाइड भी पहले देख ली है कि जो 5 प्रकार के हमने मोड्स, पर्यायें देखी थी, 5 प्रकार के पर्याय देखी थी ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब 2 में डिवाइडेड है, एक द्रव्य और एक भाव, मतलब जीव और अजीव, इन दोनों में डिवाइडेड है। ये अपन पहले देख चुके हैं। तो ये जो स्लाइड आपके सामने है वो ये बता रही है, ऊपर है द्रव्य, उसके बगल में है भाव। ये द्रव्य भाव दोनों ही डिवाइड होते हैं इन पांचों के पांचों तत्वों में, इनफ्लक्स, बॉन्डेज, स्टॉपेज, शेडिंग एंड लिबरेशन। पांचों के अंदर ये दोनों के दोनों समझ लीजिए समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे वो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो 10 हो गए, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि हर एक मोड 2-2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आश्रव के 2 पार्ट्स हैं। आप इनफ्लक्स को देखिए, आप इनफ्लक्स को देखिए, तो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ, एक पार्ट देखिए ये ऐसा गया मटेरियल में, दूसरा पार्ट गया ये ऐसे भाव में। ठीक है, आई चूज सम अदर कलर मे बी। हाँ, ऐसे ही देखिए बॉन्डेज है, बॉन्डेज भी ये ऐसे गया द्रव्य में और ऐसे गया भाव में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप संवर या स्टॉपेज के लिए भी लगा सकते हो। ये ऐसे थोड़ा सा लंबा ये गया द्रव्य में, और ऐसे ही ये गया भाव में। समझ आ रही है बात आपको? ऐसे ही आप लगाओ, समझ लीजिए शेडिंग में, शेडिंग मतलब निर्जरा, निर्जरा ये गया द्रव्य में और ये गया भाव में, इस तरीके से। और मोक्ष में भी लगा लीजिए, ये ऐसे गया द्रव्य में और ये ऐसे गया भाव में। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि ये पांचों के 5 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक मटेरियल और एक साइकिक, मतलब एक द्रव्य और एक भाव। इस तरीके से समझ लीजिए ये पांचों तत्व आ गए। अब ये पांचों तत्वों से थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है, और अब हम बात कर रहे हैं इसके मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू पे।
स्क्रीन आपके सामने है। इसका जो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू है उसे कैसे समझना है वो हम सबसे पहले देख रहे हैं। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू में जरा देखते हैं। तो आश्रव फर्स्ट है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। सॉरी मैं यहाँ नाम नहीं लिख पाया, अभी लिखता हूं। अब इनमें देखिए, तो सबसे पहला है कर्मों का आना। कर्मों का आना इसे कहते हैं आश्रव। ठीक है। कर्मों का बंधना इसे कहते हैं बंध। कर्मों का रुकना, कर्मों का आना रुकना इसे कहते हैं संवर। और कर्मों का एक देश या थोड़ा झड़ जाना इसे कहते हैं निर्जरा। और कर्मों का पूरी तरीके से नष्ट हो जाना इसे कहते हैं मोक्ष। रानू जी, इज इट क्लियर नाउ? या ओके, clear. एंड आई एम सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन के लिए। कर्मों नो को, प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ, जो द्रव्य है, द्रव्य पर्याय हैं, ये सारी द्रव्यों की पर्याय के हिसाब से आप देख सकते हो। द्रव्य मतलब नॉन सोल फंडामेंटल का वर्जन। नॉन सोल वर्जन की बात है ना मटेरियल वर्जन में। तो मटेरियल वर्जन ऑफ 5 मोड्स मतलब द्रव्य आश्रव। द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? तो कर्मों के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। कर्मों के बंधने को द्रव्य बंध कहते हैं। कर्मों के रुकने को, कर्मों का आना रुक जाए, उसे कहते हैं संवर। कर्मों के थोड़े कर्मों के क्षय को या कर्मों के एक देश क्षय को उसे हम कहते हैं निर्जरा। और कर्मों का पूरा अभाव हो जाना उसे हम कहते हैं मोक्ष। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आया कि कर्मों की ये जो 5 अवस्थाएं हैं, इन 5 अवस्थाओं में अब सीधा सीधा अर्थ लगा लो। एक मेहमान जैसे होता है, वो पहले हमारे घर में आता है, फिर हमारे घर में रुकता है, फिर बहुत दिन हो जाते हैं तो हम कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। तो वो हमारे घर से जाने की तैयारी करना शुरू करता है। मतलब उसके दिमाग में बैठ जाता है कि भैया ये घर मेरा नहीं है। अब वो घर को छोड़ करके जाने लगता है। तो वो उसको कहेंगे हम निर्जरा। और जब वो पूरी तरीके से घर छोड़ करके चला गया है, इसे हम कहेंगे अतिथि से मोक्ष मिल गया। ऐसे ही देखिए, पानी का, नाव का उदाहरण हमने लिया था। नाव में छेद हो गया है। नाव में जो छेद हो गया है वो हो गया है पानी का आना। मतलब उसमें से पानी अब अंदर आने लगा है। आने लगा है तो धीरे धीरे करके वो नाव में भरने लगा है। तो उस पानी का अंदर आना इसे तो कहते हैं आश्रव। उस पानी का अंदर आके रुक जाना मतलब भरने लगना, इसको कहेंगे हम बंध। अब वो पानी को धीरे धीरे क्या किया हमने, उसका जो गड्ढा है उसको रोक दिया है, उसको बिल्कुल वहां से बंद कर दिया। इसे हम कहेंगे द्रव्य संवर। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हमने पानी को बाहर निकालना शुरू किया है। तो जब तक पूरा पानी नहीं बाहर निकल गया है इसे हम कहेंगे द्रव्य निर्जरा। और जब पूरी तरीके से वो पानी से हमारा जो नाव है वो सूख गया है, उसको हम कहेंगे मोक्ष। बात समझ में आई सबको? चलो, आई थिंक यश को समझ आ गया है, तो मतलब सबको समझ आ गया है। सम्यक, इज इट क्लियर माय डियर? Yeah. Okay. Whom should I ask? Kunal ji, is it clear? हाँ जी, हाँ सर, थैंक यू। तो कहने का मतलब हमारा सीधी सी भाषा में इतना हुआ कि हमने इस तरीके से जब कर्मों को देखा है तो हमें ये बात समझ में आई है कि ये जो द्रव्य आश्रव बंध सयन जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन है मेरे को। तो आप ये जो मटेरियल वर्जन, मतलब ये जो 5 वर्जन है हमारे, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये हमेशा कर्मों के थ्रू ही एप्लीकेबल होता है? मतलब कर्म इज द ओनली थिंग जहाँ पे ये 5 चीजें एप्लीकेबल होती हैं? देखिए, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी
कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 5 पर्याय हैं जीव की और अजीव की। ठीक है, ये जो अजीव की पर्याय है, अजीव की पर्याय को कहते हैं द्रव्य वर्जन ऑफ 5 मोड्स, मतलब मटीरियल वर्जन ऑफ 5 मोड्स। तो अभी ये जो 5 हमारे सामने हैं, ये सिर्फ मटीरियल वर्जन्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, ये तो हुआ मतलब कर्मों की अपेक्षा से, या समझ लीजिए अजीव की अपेक्षा से हमने इस रेफरेंस को देखा है। अगले स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं इसका साइकिक वर्जन। ठीक है, बस ये इतना हमको करना है आज की क्लास के लिए, फिर इसके बाद में हम डेफिनेशंस पे आ जाएंगे और बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये है साइकिक वर्जन ऑफ 5 मोड्स, मतलब भाव तत्व, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। ठीक है, ये भी 5 हैं, आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहे हैं। अब जरा देखिए इनका क्या मतलब होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मुक्ति तो जीव की होती है, कर्मों की मुक्ति नहीं होती है। कर्म ही, जीव ही संसार में बंधा हुआ है, तो जीव ही संसार से मुक्त होगा। तो बेसिकली यदि कर्मों की मुक्ति भी होती हो तो उससे हमारा क्या लेना देना, हमारी मुक्ति हो जाए तो हमारे काम की। ऐसे ही ये जो साइकिक वर्जन है, ये बेसिकली भाव वर्जन है 5 मोड्स का। अब भाव वर्जन है 5 मोड्स का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली आत्मा से संबंध रखता है। ठीक है, तो अब इसके लेफ्ट साइड में देखिए, जो फर्स्ट 2 हैं उनको डाला है शुभ और अशुभ में, और जो बाकी के 3 हैं उसको डाला है शुद्ध में। लेकिन इन दोनों के साथ में एक कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है नेचर। क्लियर? इस नेचर से हमें यह समझ में आता है ये सब हमारे ही किसी न किसी प्रकार के स्वभाव हैं। जब हम शुभ और अशुभ परिणामों को उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं भाव आश्रव, और जब वो शुभ अशुभ परिणाम बने रहते हैं इसे कहते हैं भाव बंध। समझ आ रही है बात? तो भाव आश्रव और भाव बंध, इन दोनों का संबंध है संसार की अशुद्धताओं से। अशुद्धता मतलब शुभ या अशुभ। ठीक है, तो संसार में 2 चीजें यदि होती हैं, एक अच्छा और एक बुरा, तो बुरे के 2 टाइप्स हैं, एक है अच्छा वाला बुरा और एक बुरा वाला बुरा। कहने का मतलब ये है, अपनी आत्मा के जो भाव हैं, जो आत्मा के शुद्ध भाव हैं, उनको तो कहते हैं प्योर नेचर, और जो आत्मा के अशुद्ध भाव हैं, मतलब जो संसार में घुमाने वाले भाव हैं, उनको कहते हैं शुभ और अशुभ नेचर। ठीक है, तो यदि देव गति में जाने वाला भाव संसार वाला भाव है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? शुभ होते हुए भी वो बुरा है, और नरक में जाने वाला भाव वो अशुभ होते हुए भी बुरा है। तो नरक में जाने वाले भाव में कोई बुराई तो हमें समझ में आती नहीं है, वो तो हमें बुरा वैसे ही समझ में आता है, तो उसको कितना बताने की जरूरत है, वो तो हमें पता ही है। तो ये बुरा वाला बुरा है। स्वर्ग में जाने का जो भाव होता है वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा वाला बुरा है। क्यों? क्योंकि वो भी संसार में ही भटकाने वाला है, वो हमें मुक्ति नहीं दिलाने वाला है। ठीक है, तो 4 गतियों में जो भटकाए उसको हम कहते हैं अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव के 2 टाइप्स हैं, एक है शुभ और एक है अशुभ। तो जो मनुष्य और देव गति है इसको कहते हैं शुभ भाव, और जो तिर्यंच और नरक गति है इसको कहते हैं अशुभ भाव। रानू जी थोड़ा क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, ओके। तो इस तरीके से हमने पहले आश्रव को लिया, आश्रव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव्याश्रव को हमने पिछले स्लाइड में देखा था। द्रव्याश्रव को हमने पिछले स्लाइड में देखा था
कर्मों का आना, इसे कहते हैं द्रव्य आश्रव। अब प्रश्न खड़ा होता है, फिर भाव आश्रव किसे कहते हैं? तो भाव आश्रव कहते हैं शुभाशुभ कर्मों का आत्मा में उत्पन्न होना। समझ आई आपको बात? अब बिल्कुल ऐसे ही आप लगाइए बंध पे, ठीक है? बंध पे लगाते हैं। आई गेस मैं सबसे पहले रानू जी से ही बोलता हूं। रानू जी, मुझे बताइए द्रव्य बंध किसे कहते हैं? शुभाशुभ भावों का आत्मा फिर से के नहीं, साथ आप क्वेश्चन फिर से bondage। सुनिए, क्वेश्चन फिर से सुनिए। द्रव्य बंध किसे कहते हैं? द्रव्य बंध। अच्छा, द्रव्य बंध, सॉरी, हाँ, द्रव्य बंध कर्मों का बंधना। ये हुई ना बात, कर्मों का बंधना, इसे कहते हैं द्रव्य बंध, ठीक है? द्रव्य बंध, या इसका दूसरा नाम है मटीरियल बंध, ठीक है? ओके, अब मुझे बताइए भाव बंध किसे कहते हैं? आप ड्रॉ कर सकते हैं? शुभाशुभ, मेरी स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, कोई ऑप्शन तो नहीं दिख अच्छा, रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ओके 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 ओके। This one, I think. Bondage. यस, वेरी गुड। बने रहना, किसका बने रहना? शुभाशुभ भावों का। वंडरफुल। तो ये शुभाशुभ भावों का बने रहना, इसे कहते हैं हम भाव बंध, ठीक है? अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, प्रवीण जी सर, द्रव्य संवर, हाँ, द्रव्य संवर किसे कहते हैं? स्क्रीन पे जरा उसको इंडिकेट कर दीजिए। हाँ ठीक है। स्टॉपेज ऑफ इनकमिंग ग्रुप नो। वेरी गुड। कर्मों का आना, रुक जाना, इसे हम कहते हैं द्रव्य संवर। अब बताइए भाव संवर किसे कहते हैं? भाव संवर को इंडिकेट कर दीजिए। ओके, ये हुई ना बात। तो अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकारना, अपने शुद्ध स्वभाव की उत्पत्ति होना, इसे कहते हैं हम संवर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, कोई बात नहीं। नाउ आईड लाइक टू हैव समबडी एल्स। अक्षय दोषी जी, संयम जी। हाँ, मुझे अब बता दीजिए फटाफट आप मोक्ष, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष स्क्रीन पे। जी, सो ये रहा द्रव्य मोक्ष, या कर्मों का पूरी तरीके से अभाव होना। हाँ, कर्मों का पूरी तरीके से अभाव होना, इसे हम कहते हैं द्रव्य मोक्ष। द्रव्य मोक्ष। हाँ, लेट्स गो टू भाव मोक्ष। भाव मोक्ष, शुद्ध भावों का पूरी तरीके से, शुद्ध भावों का पूरी तरीके से शुद्ध भावों का पूर्ण हो जाना, शुद्ध भावों का पूर्ण हो जाना। संवर में तो शुरुआत हुई थी, निर्जरा में उसकी वृद्धि